नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया देश की बात में। मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद में राष्ट्रपति का 59 मिनट का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा 70+ बुजुर्गों को आयुष्मान का फायदा मिला, छोटे कारोबारियों को दोगुना लोन, 3 करोड़ बनेंगे नए घर। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बजट में गरीबों और मिडिल क्लास को मिलेगा तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत। आम बजट से पहले वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश। कल संसद में पेश किया जाएगा आम बजट। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सभी सवालों का दिया जवाब। केजरीवाल ने सीईसी पर भी उठाए सवाल। चुनाव आयोग ने जांच के बाद फैसला लेने की कही बात। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाई गई ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। संस्थापक अजय दास ने दोनों को किया निष्कासित। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 130 मरीज, 20 वेंटिलेटर पर। सबसे ज्यादा 99 मरीज पूरे से अब तक 2 लोगों की गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की चुनावी जनसभा। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पूर्व सीएम केजरीवाल। शाम 4 बजे लक्ष्मी नगर, 5 बजे गांधीनगर जनसभा करेंगे। 6 बजे शाहदरा विधानसभा में जनसभाओं में लेंगे भाग। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली वासियों से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधा आपको लेके चलते हैं दिल्ली, जहां आर्थिक सर्वेक्षण पर परीक्षण हो रहा है। Reducing carbon emissions, because the end result, and there are discussions on that, and there is that it would only shift the carbon emissions from, at the moment they are consuming, because they are basically importing much of steel, let's say, but by this measure they protect their own domestic industry, and the emissions will happen within their countries. So how much is going to be really stopped in terms of carbon emissions? There are a number of studies, and an UNCTAD report brings out the fact that there's not going to be much gained through that. So clearly a measure to protect their own industry. Thank you. 11. Hello sir, this is Surbhi from Business Today. Sir, the survey has spoken about the rupee and how the dollar has gained strength over the last few years, and the rupee has still performed well, depreciating 2.9%. So do you see further depreciation of the rupee? Because a lot of analysts are speaking about, rupee touching 87 or 89, and how do you see it impacting the economy? Thank you. No, I think it's this foreign exchange management related question is better posed to the central bank, and unfortunately they're not here. I think the recent actions taken by the central bank, either with respect to the rupee or with respect to domestic liquidity, are the right steps in the right direction, and I don't want to add anything more than that. 46. Prakash Pedashu from ET now. Boosting domestic consumption is of course a key focus for the government at this point of time. Did the economic survey make any specific recommendation to the government? So what is the question? The domestic consumption. I mean, boosting domestic consumption is of course a key focus for the government. So did the economic survey make any specific recommendation? I'm not sure. The economic survey. I'm not sure, I really. फिर से अपना क्वेश्चन दोहराइए प्लीज प्रकाश. Has the economic survey made any specific recommendation to boost domestic consumption? Yes. Is that the question? Yes. Okay. Well, the recommendation which is made not just to the union government but to governments around the country is actually a step to boosting
employment, income generation, and therefore consumption. This is about deregulation is exactly towards that. It is not a recommendation only to the union government. So by simplifying regulations and by looking into the nuts and bolts of regulations that affect small businesses, we are lowering the cost of doing business for them, therefore opening up the space for them to hire more, which will lead to income growth and therefore better consumption. That is the very precise recommendation that the economic survey is making to governments all around the country. 52. Good afternoon, Nikunj Johri from Reuters. I have two questions. You've cited geopolitical risks to India's growth. And lately we've seen persistent tariff threats from the United States. So, do you think India needs to have a preemptive policy, perhaps, or we need to our measures should be more reactive? And secondly. We've seen our net FDIs sharply coming down, although the gross FDI is increasing. There is a higher repatriation, as your presentation also stated. But the net FDI is sharply down. What do you think needs to be done to attract more FDI? The last year's survey suggested that India should open its door for Chinese investments. Lately, we've also seen de-escalation and resumption of direct flights. So, do you think the time is right now to lift the investment restrictions that we have on China? So, Nikunj, with respect to your first question, the answer I gave to the gentleman from ET now is the same answer, which is that we don't want to talk about speculative scenarios of a single country's trade policies, etc. In general, I think the steps that we need to take, and in fact, the economic survey, the chapter on external sector, has a box item on trade policies and the kind of industrial policies that have been adopted by countries in the past, and how we can adopt industrial policy without necessarily being protectionist about it. At the same time, it can also be an inducement for productivity. We have discussed all those things, and that is the way to approach it. So I think there is no point in being speculative, and whatever policies that may need to be taken in response to or in anticipation, that I'm sure ministries are looking at it. Now, with respect to boosting FDI, I think we have made our recommendations, few suggestions in the last economic survey. But again, FDI is something, as we showed in one of the earlier slides, FDI as a share of GDP has come down much faster than the export share of GDP globally. And we are no longer competing only with other emerging market nations. We are even competing with industrialized countries which want to friendshore or onshore their investments. And therefore, so one of the biggest magnets for FDI is actually the prospect of profitable returns, which is what India has been providing, whether it is portfolio investors or direct investors. And the last 2 years of continuous exits actually demonstrate that. And one way to ensure profitable exits is to ensure steady economic growth, and wherever possible, accelerating economic growth. Beyond that, whatever procedural requirements or opening up of sectors, we have done most of those things in several areas, more recently being in the last several years, being defense, space, drones, etc. So, whether it is with respect to tariff policies or visa policies, etc., the government has been responding to the emerging situation, and therefore, the FDI numbers should be looked at from the perspective of what is happening elsewhere in the world as well, in terms of overall FDI flows in general, which is what UNCTAD reports also point out, that there has been a decline because of various policy developments happening in every part of the world. 35. Hello, sir. Ruchika from Business Standard. My question is with regard to your comments on AI. You've said that private companies should take into account social costs when deploying AI. And the survey also says that if companies do not optimize the introduction of AI over a long horizon and handle it with sensitivity, there's the demand for policy intervention and the demand on fiscal resources to compensate will be irresistible. So is there a case of taxing companies if they replace labor with AI? No, I'm not getting into specifics because we have not reached that point.
it is a potential scenario that can develop if over time, and this is, by the way, a point made by the IMF in its discussion paper that came out roughly about a year ago, which is that if the social impacts of technological deployment results in such massive labor displacement, then in several countries there will be a call for action on the part of the government authorities. But that is a hypothetical scenario which may develop if all considerations are not kept in mind, whether it is in terms of labor redeployment, labor reskilling, upskilling, etc. So this is, at the moment, there is no specific action that is contemplated, and that is not what is hinted at all in this special essay. 9. सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि क्या अभी भी आपको लगता है जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन है वो एक मेजर कंसर्न है? आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो फूड सब्सिडी है वो 0.5% से पिछले साल से बढ़ी है। दूसरा सर, क्रूड को लेकर आपका क्या आउटलुक है? क्या जो आपने 6.3, 6.8 का जो ग्रोथ रेट लिया है उसमें क्रूड का आउटलुक क्या रहेगा? We have devoted a lot of space in the economic survey on food inflation. The point that we have made and we have been making over quite some time was that it's a concentrated impact of a couple of, or now let's say 3-4 items which lead to a very high food inflation. Food inflation is 8% now, and if we remove these 4-5 items, it becomes close to the target. So why does that happen is quite commonplace knowledge. It happens because when there are climatic disruptions which are increasing, which we have shown in the chapter, there are crop losses, and naturally that leads to a seasonal spike in food inflation. So it's a question of management of the season. It's not a perennial annual concern. So we'll take last 2 questions. 121. रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की फहरिस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिणी में भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। रोहिणी की जनसभा में अमित शाह के पहुंचते ही जय श्री राम और भारत माता की जय व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने रोहिणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के लिए भारी जन समर्थन की अपील की। इस मौके पर अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है। और रोहिणी के साथ होने वाले विकास कार्यों में अड़चन लगाने का, लेकिन मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं, 5 दिन को 3000 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गरीबों को झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में भोजन कराएंगे और हमारे युवाओं को जो बच्चियां हैं वो केजी से पीजी तक की उनकी पूरी शिक्षा दिल्ली सरकार की ओर से कर दी जाएगी। ऑटो चालक और टैक्सी चालक को 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे और महुआ से जुड़े हुए 1700 अनधिकृत कॉलोनी में हम मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आगामी 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में तेजी आ गई है।
आम आदमी पार्टी के पंजाब से लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी हुजूम दिखा। मीत ने राजा विहार की झुग्गी बस्ती में पदयात्रा की और यहां के लोगों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि रोहिणी में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी, जैसा कि 2015 और 2020 में हुआ था। मीत ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सराहना करते हुए कहा है कि लोग केवल उन्हीं नेताओं पर विश्वास करते हैं जो अपनी बात को पूरा करते हैं। उनका दावा था कि इस बार भी आम आदमी पार्टी बहुमत से जीत हासिल करेगी। देखिए, मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूँ पिछले 20 दिन से, रोज नई विधानसभा में जाने का मौका मिल रहा है और सारी जगह एक ही आवाज़ है कि जी हमें सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास है। एक ही लीडर है, जो कहता है वो करता है और इसलिए हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और अगर रोहिणी की बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 साल से बीजेपी का एमएलए है और पिछले 10 साल में एक भी काम बीजेपी के एमएलए नहीं किया और उल्टा पिछले 4 साल से पहले यहाँ रहते थे, ये छोड़ के भी इलाका ग्रेटर कैलाश चले गए हैं। जो एमएलए जहाँ रहना नहीं पसंद करता वो क्या काम रोहिणी के लोगों के लिए करेगा। और आपने खुद कहा 10 साल से बीजेपी का यहाँ पे विधायक है, क्या इस बात को इतिहास बदलेगा? 100% बदलेगा। प्रदीप मित्तल जी जो हमारे यहाँ से पार्षद भी हैं, 100% इस बार जीत दर्ज करेंगे। और प्रदीप मित्तल जी यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल समस्या को समझते हैं। और बड़ी बात कि जो पार्टी सत्ता में आ रही है उसके एमएलए बनेंगे, क्योंकि सत्ता में आना होता है वो सामने दीवार पर लिखा है, अगर पढ़ा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी बड़ी बहुमत से, जैसे 2015 में जीती, 20 में जीती, इस बार भी बड़ी बहुमत से जीतने जा रही है। क्योंकि बीजेपी के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी पिछले दिनों आए थे, पत्रकारों ने 100 बार सवाल किया कि जी जो जन कल्याण की सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, आप बिजली देंगे मुफ्त, आप पानी देंगे मुफ्त, तो गृह मंत्री जी उस सवाल को खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको यमुनानगर से बता रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 12 के शादीपुर में एक लाखों रुपए की लागत से तैयार होने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास नगर पार्षद संजीव कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर संजीव कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 12 में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तालाब और शौचालयों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इस विकास कार्य से क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, जो स्थानीय सामाजिक और अवसंरचनात्मक सुधार में मददगार साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको मोगा से बता रहे हैं, जहां पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 300 ग्राम हेरोइन, 315 बोर की 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को भी पकड़ा गया है। एसपीडी बालकृष्ण सिंगला ने बताया है कि मोगा पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एसएसपी मोगा अजय गांधी के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को काबू किया गया है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी।
ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਪੁੱਤਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕੋਟੂ ਫੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੋਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ 315 ਬੋਰ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਤੇ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੋਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ 315 ਬੋਰ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਤੇ 2 ਕਾਰਤੂਸ 315 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ वारदात ਉਹਨਾਂ ਨੇ अंजाम देना। खबर भिंड से अब आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद का अमला सदर बाजार में फुटपाथ पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा। फुटपाथ कार्रवाई होते हुए देखकर एक बुजुर्ग दुकानदार ने अपना हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। दरअसल नगर पालिका परिषद को सदर बाजार में दुकानों के बाहर सामान फुटपाथ पर रख बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिस कार्रवाई करने के लिए नपा अमला सदर बाजार में कार्रवाई करने पहुंचा और फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त करने लगा। कार्रवाई को देखकर एक बुजुर्ग दुकानदार ने अपना दुकान के अंदर रखे सामान को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया और हाई वोल्टेज ड्रामा कर वहां कुछ देर बाद बुजुर्ग दुकानदार को समझाकर शांत कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर शहर कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। व्यापारियों के द्वारा इस तरह की शिकायत की जा रही थी कि सदर बाजार भिंड में फुटपाथ पर कुछ लोग अस्थायी अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और साथ ही दुर्घटना की संभावना में व्याप्ति। इसको दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका अमले के द्वारा जो अस्थायी रूप से अतिक्रमणधारी थे उनसे फुटपाथ खाली कराया गया है। साथ ही फुटपाथ के ऊपर जो काउंटर रख करके स्थायी दुकानदार व्यवसाय कर रहे थे उनसे भी फुटपाथ खाली कराने की चेतावनी दी गई है तथा उनको जो फुटपाथ पर विशेष रूप से अतिक्रमित थे, जिनको जो नहीं हटाए जा रहे थे, उनकी काफ़ी लोगों से शिकायतें थी। ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। कितने की चालानी कार्रवाई की राशि है सर? निरंतर रूप से चालानी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह से फुटपाथ पर शासकीय भूमि पर यातायात बाधित होगा तो निश्चित रूप से पर डे प्रतिदिन ही चालानी कार्रवाई की। अगली खबर भी आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर हमले का मामला सामने आ रहा है। कलेक्टर बोले, मुझ पर नहीं हुआ कोई हमला, रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सौंपा गया था। कलेक्टर का बयान सामने आ रहा है। उमरी थाना क्षेत्र में हुई घटना पर कलेक्टर का बयान सामने आ रहा है। भिंड से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भिंड से हम जानकारी आपको दे रहे, कलेक्टर संजीव कुमार का बड़ा बयान सामने आ रहा है। मुझ पर नहीं हुआ कोई हमला, रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सौंपा था। भिंड से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। उमरी थाना क्षेत्र में हुई घटना पर कलेक्टर का बयान सामने आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, जैसा कि कलेक्टर का बयान भी सामने आ रहा है कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है, तो क्या पूरी अपडेट है इस खबर पे? मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा है कि मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है। रात में माइनिंग विभाग की टीम रेत पर कार्रवाई करने गई थी
मार्निंग सुपरवाइज टीम पे का भी हमला हुआ। रेत से भरी ट्रैक्टर भी पकड़े जाने की बात सामने आ रही है योगेश, जी क्या पूरी अपडेट है? कलेक्टर ने सफाई देते हुए ये कहा है कि मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ है। दरअसल माइनिंग विभाग की टीम रेत माफिया पर कार्रवाई करने गई थी और माइनिंग टीम पर हमला हुआ है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भिंड से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कलेक्टर का बयान सामने आ रहा है। कलेक्टर ने कहा है कि मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है। देशी बात में बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां एलडीए में आज 31 कर्मचारी हो रहे हैं सेवानिवृत्त। चतुर्थ श्रेणी माली बाबू आज होगी प्राधिकरण से विदाई। 31 और कर्मचारियों की आज विदाई हो जाएगी। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, प्राधिकरण से विदाई कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कर्मचारियों को किया गया है सम्मानित। बड़ी संख्या में आज कर्मचारी हो रहे हैं सेवानिवृत्त। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी माली बाबू आज होगी प्राधिकरण में विदाई। 31 और कर्मचारियों की आज प्राधिकरण से विदाई हो जाएगी। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। बड़ी संख्या में आज कर्मचारी हो रहे हैं सेवानिवृत्त। एलडीए में आज 31 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी माली बाबू आज होगी प्राधिकरण से विदाई। 31 और कर्मचारियों की आज प्राधिकरण से विदाई हो जाएगी। एलडीए में आज 31 कर्मचारियों की विदाई हो जाएगी। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी माली बाबू आज होगी प्राधिकरण से विदाई। इसी खबर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत तिवारी, जैसा कि आज एलडीए में 31 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। अनिकेत, देखिए, अगर बात की जाए लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो आज 31 जनवरी और आज 31 जनवरी के दिन तमाम कर्मचारी हैं वो आज प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और अगर बात की जाए जो सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की, तो इसमें चाहे माली हो या फिर बाबू चतुर्थ श्रेणी के तमाम जो कर्मचारी हैं वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम जो इंजीनियर है, तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुष्प भेंट अर्पण करके उनको सम्मानित किया। और जो चीफ इंजीनियर अभिनंदन सिंह है, उन्होंने भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आज सम्मानित किया है और उनको विदाई दी। अनिकेत, सिर्फ चतुर्थ श्रेणी में ही सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहे हैं या फिर अन्य श्रेणी में भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे आज? लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो सूची 31 जो कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उसमें बाबू है और जो माली श्रेणी जो है वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनिकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां कुंभ मेले से आते वक्त कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घायलों में 3 की हालत बताई जा रही है गंभीर।
उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है, अन्य घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सोनभद्र के चौपन थाना स्थित प्रीतनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अन्य घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 3 की हालत बताई जा रही है गंभीर। उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सोनभद्र से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अन्य घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सोनभद्र के चौपन थाना स्थित प्रीतनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कुंभ मेले से आते वक्त कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब बात करेंगे आगरा की, जहां पिनाहट बाजार बंद कर व्यापारियों का आक्रोश सामने आ रहा है। व्यापारी एकत्रित होकर पहुंचे थाने, जताया आक्रोश। पुलिस ने युवक पर नहीं की थी कोई कार्रवाई न करने को लेकर एकत्रित हुए व्यापारी। आगरा से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। व्यापारी से आभूषण किराए पर लेकर गया था युवक ने व्यापारी को नहीं वापस किया आभूषण। युवक पर व्यापारी के आभूषण बेचने का आरोप लगाया गया है। व्यापारियों को पुलिस ने समझाया, मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिनाहट के सदर बाजार के ज्वेलर्स व्यापारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक ने व्यापारी को नहीं वापस किया आभूषण। आगरा से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। युवक पर व्यापारी के आभूषण बेचने का आरोप लगाया गया है। और उनके पिताजी का नाम उमाशंकर, जो गांव नयावास के निवासी जी, वो मेरे से एक कंदौनी और सीतारामी ले गए थे 20 तारीख को, 20 जनवरी को, और ये कहकर ले गए थे कि कल चढ़ाने के बाद कल आ जाएगी परसों वापस। और मैंने उसे फ़ोन किया 21 और 22 को, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 23 को फ़ोन किया था तो उसने बोलता है कि मैंने अपनी सौदा भेज दी आपके पैसे आएंगे तो 8-10 महीना मेरे पे जब हो जाएंगे तब। अच्छा। मैंने तेरी की सौदा थोड़ी तूने भेज दी। अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां बंदियों के बीच लॉकअप में हुई मारपीट में एक बंदी गंभीर रूप से घायल हुआ है। रायबरेली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। पेशी के दौरान न्यायालय लाए गए थे बंदी। न्यायालय के लॉकअप में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। मारपीट में घायल बंदी आसिफ गंभीर रूप से घायल है। पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। घायल बंदी से चेहरे व सिर में आई गंभीर चोटें। एनडीपीएस के मामले में जेल में बंद है घायल बंदी आसिफ। कोतवाली क्षेत्र के दीवानी न्यायालय परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मारपीट में घायल बंदी की हालत गंभीर। पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। घायल बंदी से चेहरे व सिर में गंभीर चोटें आई हैं। एनडीपीएस के मामले में जेल में बंद है घायल बंदी आसिफ। पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बंदी के चेहरे व सिर में आई गंभीर चोटें। कोतवाली क्षेत्र के दीवानी न्यायालय परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 के अंडर 19 का 7वां मुकाबला BPMG अयोध्या वर्सेस स्पार्क लखनऊ के बीच खेला गया। इस मुकाबले में BPMG अयोध्या ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और स्पार्क लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। स्पार्क लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर अली के 41 और सक्षम के 48 रनों के बदौलत 193 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। BPMG अयोध्या के गेंदबाज आलोक को 2 विकेट मिले। जवाब में उतरी टीम BPMG अयोध्या निर्धारित 20 ओवरों के खेल में अपने सभी 10 विकेट खोकर महज 114 रन ही बना सके। हर्ष ने 22 और नवीन ने 19 रनों का योगदान दिया। स्पार्क लखनऊ के गेंदबाज निहाल और आशीष को
3-3 विकेट और भूपेंद्र पाल को 2 विकेट मिले। इस प्रकार से स्पार्क लखनऊ ने 79 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच आशीष मांझी रहे और फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार आलोक राजपूत को मिला। यह जानकारी सीपीएल कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर जनपद के तालबेहट विकासखंड के 3 विद्यालयों में शिक्षकों की लापरवाही से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बगोरा और हजारिया गांव के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक रोजाना विद्यालय का समय 1 घंटे पहले ही समाप्त कर घर चले जाते हैं, जबकि विद्यालय का निर्धारित समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का है। 20 जनवरी को भी यह घटना सामने आई, जब शिक्षक 2 बजे ही विद्यालय को बंद करके चले गए। इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने कहा है कि जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह सवाल उठता है कि क्या खंड शिक्षा अधिकारी इस लापरवाही पर नजर नहीं डाल रहे हैं या फिर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया है। ऐसे में शिक्षकों की जिम्मेदारी और शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। जनवरी की बात है कि तालबेहट क्षेत्र के 3 विद्यालय जो कि निर्धारित समय से पहले ही बच्चों की छुट्टी कर दी गई, उनका ये मामला है। क्या कार्रवाई करेंगे? आपके द्वारा ये संज्ञान में आया है कि तालबेहट के कुछ विद्यालय 20 तारीख को 2 बजे 2:30 बजे के लगभग बंद मिले, तो इसकी जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होंगे टीचर निश्चित ही उन पर जो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये तब तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो भी लापरवाही हो रही है या अनुपस्थित पाए जा रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है बेटा? किस गांव की हो आप? अच्छा, कितने में पढ़ती हो? 6 में। स्कूल का टाइम क्या है? 9 से 3 बजे तक। 3 बजे तक। अभी कितने बजे? 2। क्यों जल्दी कर दी छुट्टी बेटा आज? क्या पता। कितने में पढ़ती हो? 4। क्या नाम है स्कूल का? प्राथमिक विद्यालय है। आज कितने बजे बंद हुआ स्कूल? 2 बजे। अच्छा, 2 बजे हुआ। और टाइम कितने का है? 9 से 3। स्कूल का टाइम क्या है खुलने का? स्कूल को 9 से 3 बजे तक। 3 बजे तक। तो आज कितने बजे बंद हुआ? 2 बजे। अच्छा, क्यों हुआ जी बंद? अब तो मास्टर के ऊपर है, भाग गए मास्टर। अच्छा, आप लोग कहते नहीं हो उनसे? नहीं कहते, कसो वे हमारे क्षेत्र में नहीं देती कच्ची। अच्छा अच्छा, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो रहा? अब वो तो हो ही रहा, सो क्या कराए। तो खबर सहारनपुर से अब आपको बता रहे हैं, जहां चाइनीज मांझे के उपयोग से हुई दुर्घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए अब स्कूली संस्थाएं भी सामने आने लगी हैं। गुरुवार को चिलकाना रोड स्थित अल्पाइन स्कूल में दर्जनों स्कूलों के छात्र छात्राएं एकत्रित हुए और चिलकाना रोड से होते हुए ब्राउनीवुड स्कूल तक मानव श्रृंखला बनाकर चाइनीज मांझे के विरोध में जागरूकता रैली निकाली। इस जागरूकता रैली में स्कूली संस्था AEII का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। रैली के दौरान दर्जनों स्कूलों के छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने चाइनीज मांझे के विरुद्ध चार्ट पेपर और बैनर हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया है। आज जनपद के 20 से ज़्यादा स्कूलों ने अल्पाइन पब्लिक स्कूल के नेतृत्व में स्कूल से शुरू करके ब्राउनवुड तक एक जागरूकता अभियान के तहत ये रैली निकाली है। ज़िला प्रशासन की तरफ से एक इसमें अच्छी पहल की गई है कि लोगों को चाइनीज़ मांझे के बारे में जागरूक करें, इसकी बुराइयों के बारे में, इससे हो रहे खतरों के बारे में। और हमने सब स्कूलों ने उनकी इस पहल का साथ देने के लिए आज इन बच्चों की ये रैली निकाली। तो क्या संदेश बच्चों को दिया गया है, क्या बताया गया है? हमने उन्हें यही कहा है कि ना तो वो इस बुराई को अपने आसपास बिल्कुल पनपने दें, ना खुद यूज़ करें, ना अपने पड़ोस में, अपने साथियों में, जहाँ जहाँ उनकी पहुँच है वहाँ वहाँ ये मैसेज पहुँचाएं कि ये एक बहुत बुरी बात है
इससे बहुत सारे लोगों को, कई लोगों की तो जान तक गई है। रोज़ाना खबरें आती हैं कि चाइनीज़ मांझे से घायल हुए हैं लोग। जब हम खबरें पढ़ते हैं तो शायद वो इंसानों के बारे में होती हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। इससे जानवरों को बहुत नुकसान, स्पेशली पक्षियों को बहुत नुकसान हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां जनपद के चिलकाना रोड स्थित एल्पाइन पब्लिक स्कूल में बुधवार से चल रहे रेनबो टैलेंट हंट का दूसरा चरण स्पोर्ट टैलेंट हंट के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के करीब 20 विद्यालयों के लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में ड्राइंग कंपटीशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन, साहित्य व काव्य में देशभक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ अपने भाषण, कविताओं तथा शायरी द्वारा बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने कुशलतापूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा के जौहर को दिखाया। कार्यक्रम के बाद मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आज हमने अपना इंटर स्कूल कंपटीशन कराया है, क्रीड़ा प्रतियोगिता। ये जो हमारे 8वीं तक के स्कूल हैं जिनको बड़ा ग्राउंड खेलने का या अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता, ग्राउंड छोटा होने के कारण या फैसिलिटी उपलब्ध न होने के कारण, हमने उन बच्चों को यहाँ मौका दिया है कि वो अपनी खेल संबंधी जो भी उनका स्किल है वो यहाँ अपना शो करें। लगभग 20 स्कूल से 350 बच्चों से ज़्यादा ने यहाँ जो खिलाड़ी आए हैं, 350 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं और सभी ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। संदेश देना चाहते हैं सर कि जैसे इन्होंने यहाँ सब एक साथ होके एकता के सूत्र में बन के इन्होंने यहाँ गेम खेला है, अपनी प्रतिभा दिखाई है, ऐसे ही भविष्य में भी एकजुट होकर रहे और अपनी प्रतिभा को निखारते रहे और ऐसे ही हमारे सामने पेश करते रहे। अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां हठ योगी नागा साधु ध्रुव पुरी ने नागा जीवन के रहस्य बताए। बचपन से ही संन्यास की राह पर चले श्याम कुमार आगे चलकर बने नागा साधु ध्रुव पुरी बन गए। नागा साधु ध्रुव पुरी ने बताया कि धर्म का काम करने के लिए संन्यास लिया। हम अपने धर्म, ध्वजा और अखाड़ा परिक्षेत्र में नागा भेष में रहते हैं और जब समाज में गुजरते हैं तो सामाजिक मर्यादा का पालन करते हैं। हम शिव के भक्त हैं, शिव की भक्ति में जीवन समर्पित किया है और जनता के लोग हमारे पास भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए ही आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जूना अखाड़े में। जूना अखाड़े में हमारी हुई और उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके पूर्व जन्म के बारे में। पूर्व जन्म अर्थात पहले वो क्या करते थे। आइए मिलते हैं नागा साहब से। महाराज क्या नाम है आपका? स्वामी ध्रुवपुरी नागा बाबा। ध्रुवपुरी नागा। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी। किस उम्र में आप इस सन्यास जीवन में आए? तो बहुत छोटी उम्र से ही आ गया। बहुत छोटी उम्र से। पूर्व जन्म का क्या नाम था? महेश कुमार। कितने वर्षों से सन्यास में है? 98 से। और भी महापुरुष रहे हैं जी। सीताराम रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा करे हैं। इस जीवन को धारण करने की कुछ विशेष वजह? विशेष वजह धर्म का काम करना जी। माता पिता का कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन धर्म का काम करना, धर्म की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म में आगे क्या होता है, आगे के जीवन में व्यक्तियों को भरोसा देना। भक्ति का मार्ग तो बहुत कठिन है। भक्ति का मार्ग कठिन है, कठिन मार्ग करते ही हैं हम। हठ योगी हैं हम तो, हठ योग करते ही हैं। अभी आपके सामने ऐसे बैठे हैं जी। अभी 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, ये 2 घंटे हम डब्बा लगा के खड़े रहते हैं आपके सामने। 12-15 का लिंग में जो नागा का प्रैक्टिस होती, मेन लिंग, उसमें डंडा लटका के और 10-15 किलो वजन लटका के खड़े रहते हैं। 2-3 घंटे की ये प्रैक्टिस है हमारी हठ योग की जी। तो अनेक प्रकार के योग है हमारे पास। तो हमारा आश्रम योग आश्रम के नाम से गाजियाबाद। 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 पूरी दिनचर्या
क्या रहती है? जैसे सुबह से अपना नित्य पूजन पाठ करना, अपना व्यक्तिगत जो योग है वो करना, धर्म की सेवा करना, जो प्रचार करना। और भस्मी प्रसाद है हमारे पास, तो उसी का तिलक लगा के बस भक्तों को शांति देना, उनके विश्वास में कि हाँ भाई मनोकामना पूर्ण हुई, तो उनके विश्वास में फल मिलता है। तब भक्त मानते हैं हमको, तब टूटते हमारे ऊपर। आज पूरी दुनिया में महाकाल बाबा घूम रहा है। यही ये नागावेश तो शैव परंपरा का, शिव जी की भक्ति का मार्ग है। अनादि से चले आ रहा है, ये आज का नहीं है। सप्त ऋषि की संतान है, आदि अनादि से चले आ रहा है ये धर्म देवता, धर्म की रक्षा। एक बड़े कौतूहल का विषय है कि आप लोगों को कोई आते हुए न देखता है न जाते हुए देखता है। कहाँ से आते कहाँ चले जाते कोई भरोसा नहीं पता नहीं है। रहता। कोई तो क्या इसका क्या रहा? कहीं तपस्या कर रहा है, कौन सी गुफा में चले जा रहा है, कोई 2 महीने पहाड़ में रह रहा है, तो 2 महीने जंगल में रह रहा है। नहीं, जब कुंभ लगता है, कुंभ में कैसे आते हैं? कुंभ में सब अलग अलग प्रकार से, कोई ट्रेन से, कोई रेलगाड़ी से, कोई तो जैसी। मतलब इसी भेष में आते हैं क्या? मतलब नॉर्मल? भाई मर्यादा में रहना जी, यही चीज जानना चाहिए। फिर मर्यादा में रहना, तो संसार में घूमना है व्यक्तिगत, तो वो हम अपनी मर्यादा में वस्त्र धारण करके ही घूमते हैं। अब यहाँ हमारा ये घे मेला है, हमारा धर्म ध्वजा है, तो उसके वो सामने तो हमको अपने भेष में रहना पड़ेगा ना। महाकुंभ भी हमारा भेष ही है। बाकी अपने आश्रम में दिगंबर रहते हैं या अपने प्रतिबंधित जगहों में, हम लोगों का ऐसा कोई नहीं रहता है। फालतू घूमना, कहीं भीख मांगना, ये काम नहीं रहता है। कहीं जाएंगे भी ट्रेन से, मर्यादा से, तो ट्रेन से उतरे, अपना ऑटो का साधन पकड़ के अपने आश्रम में, ये फालतू नहीं भटकते हमारे साधु नागा साधु। जैसा कि आपने देखा, नागा साधु से हमने आपको मुलाकात कराई और उन्होंने मर्यादा को सर्वोपरि बताया। और आपको बता दें, नागा साधु ने अपने पूरे जीवन के बारे में हमें विस्तार से बताया। और हमारे साथ कैमरामैन रमेश वर्मा है, और कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी, जूना अखाड़े से, प्रयागराज की धरती से, के न्यूज़ से। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। खबर अब आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा किए गए विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रोफेसर ने पीएम और सीएम समेत कई बड़े भाजपा नेताओं को गाली दी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रशासनिक टीम इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग की है और कहा है कि इस मामले की उच्च स्तर पर जांच की जानी चाहिए। राजा भैया ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाली इस घटना पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में तैनात समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के सुपुत्र अरिमर्दन पाल के मामले को लेकर है। जिस तरीके से पिछले दिनों 12 तारीख में अरिमर्दन पाल सिंह का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ था, उस वीडियो के संदर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक तहरीर प्रॉक्टर के माध्यम से कार्रवाई के लिए दी थी, जो मेरे पास उसकी कॉपी भी है। उस तहरीर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। और हमें यह भी पता चला है कि अरिमर्दन पाल सिंह की नियुक्ति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग में इसलिए हुई कि जो वहाँ के चेयरमैन हैं प्रोफेसर मोहम्मद सारिफ साहब, वो सुल्तानपुर ज़िले के इसौली के रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्या काम करा कि श्यामलाल पाल जी से इनकी ये डील हुई कि आप हमें जो सुल्तानपुर की इसौली सीट से एमएलए का टिकट देंगे और हम आपके बेटे को असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना देंगे। और वही हुआ। उन्होंने इस सीट के एवज में लाखों रुपये लेकर के एक शराबी गालीबाज व्यक्ति को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने के मकसद से उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। और अरिमर्दन पाल सिंह प्रोफेसर बनने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसा साउथ हॉस्टल में घुस के गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। वहाँ के छात्रों से मारपिटाई हुई। छात्रों की मारपिटाई के बाद छात्रों ने उसको पकड़ करके प्रॉक्टर ऑफिस को दे दिया। प्रॉक्टर ऑफिस के कार्यालय वाले लोग
जैन मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंच गए। वहां जैन मेडिकल कॉलेज में उस गालीबाज प्रोफेसर ने नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और प्रॉक्टर ऑफिस के सुरक्षाकर्मी व प्रॉक्टर्स को भद्दी और गंदी गालियां दी। उस गालियां का वीडियो वायरल होने के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई उस गालीबाज प्रोफेसर के खिलाफ नहीं की थी। इसी संदर्भ में आज थाना सिविल लाइन में हमने उस गालीबाज प्रोफेसर के खिलाफ तहरीर भी दी है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का ईओ ने निरीक्षण किया है। अमरोहा से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आंगनवाड़ी द्वारा दिए गए पुष्टाहार की जांच की गई है। अभिभावकों से बातचीत कर सही पोषण देने को कहा है। अमरोहा से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ईओ ने बच्चों को फल एवं पोषण युक्त आहार वितरित किया। अभिभावकों से बातचीत कर सही पोषण देने को कहा है। ईओ ने बच्चों को फल एवं पोषण युक्त आहार वितरित किया। अमरोहा से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 आंगनवाड़ी केंद्रों को ईओ ब्रजेश कुमार ने ले रखा है गोद। शहर के सराय कोहना आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी केंद्र का ईओ ने निरीक्षण किया, सही पोषाहार देने का निर्देश दिया। आंगनवाड़ी द्वारा दिए गए पुष्टाहार की जांच की गई। निरीक्षण किया है आज आंगनवाड़ी केंद्र का, क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे खासकर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं, उनमें जो पोषण का असर है उसको उठाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न समय में कई प्रयास किए जाते हैं। हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक नया इनिशिएटिव लेते हुए और एक 30 अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसको उन्होंने टीम 30 नाम दिया है और उनको एक ब्लॉक, एक वार्ड गोद दिया है और उनमें जो भी स्कूल हैं, उनमें जो भी मेम और सेम की श्रेणी के अंतर्गत बच्चे आते हैं, तो उनके उस श्रेणी से उन्हें कैसे हटाया जा सके और एक स्वस्थ जीवन बच्चों को कैसे प्रदान किया जा सके, इस संबंध में आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। मुझे सराय गोना का जो है नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।